Ma'am, good evening. Good evening, everybody. Ma'am, good evening. Sorry, I am late. मैं 6th क्लास की क्लास ले रही थी, वो बच्चे छोड़ ही नहीं रहे थे मुझे. Sorry, आप लोगों को वेट करवाई. It's okay, ma'am. मैं आपकी Good evening. मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, जीके पढ़ाऊंगी और रीजनिंग पढ़ाऊंगी. मेरा नाम मेघा है. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. यहाँ मानसा Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. यहाँ पे मानसा के बच्चे हैं, मानसा स्कूल के या डीपीएस नाबा के. हेलो. हेलो. हाँ जी, नमस्कार मैम. नमस्कार सर. मेघना जी. जी. हाँ जी मैम, मैं कमल बोल रहा हूँ, 7th में कोऑर्डिनेटर इस क्लास का. ओके. है ना. तो आज मुझे लगता है थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों को, तो वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स. है ना. अभी Yeah, मुझे yeah, फोन ही आ रहे absolutely. हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे. नहीं Then we नहीं, will I start the understand. class. That is why we got late. I was taking a class for class 6 and even there they had some problems. So we had to और I extend think the class. there is a no gap between the two classes. Yeah, there is no gap. Immediate. There is no gap. So let us Right. wait for 5 minutes and then we will start the class. Sure, sure. Meanwhile, I just wanted to know if GK is in their course or not. Actually, there is no particular book prescribed for them. But in The class class 6, I was teacher- taking a class 6 and some students from Mansa school told me that they have general knowledge, but I do not have their Right. syllabus of general knowledge. And the same goes with 7th. I would require their syllabus for general knowledge if it is a part of their curriculum. No, there is no particular syllabus for class 6 and 7 for GK. Only Okay. we have our Vidya Bharati book regarding वो भारत को जानो. That is. Acha, okay. वो है syllabus. Still, if you and can a make it different- available for me, I would appreciate that. Sure. I will let you know the book or send it by. Fine, thank you. So actually, first of all, I will want to know that you will just clarify the things that how much time you will take the class, when the student will ask the question. So if this is fixed, then there is no disturbance in the class. Yeah, I will take. नमनजोत, शायद आपके उसमें प्रॉब्लम होगी. मेरी आवाज तो सर को जा रही है, तो मेरी आवाज क्लियर है बेटा. I will take the class for 40 minutes and I Okay. will ask them questions and I will ask them to speak together if I speak anything, or I will take names and ask them just to see if they are attentive. I will give them time to Okay. ask their questions in the end. Or otherwise, they will write in the chat box. Yes, they can write in the chat box. मुझे लगता है कि if we allow them, then there is a lot of student in the class. So फिर वो एकदम से छोटे बच्चे हैं, immediately they ask on ask, they will not stop. Right. So let us wait for 2-3 minutes, then we will start the class. Fine. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, how are you? I am good. Thank you. How are you? Ma'am, I'm also fine. Very nice. Thank you, ma'am. You're welcome. बेटा अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, हम वेट कर रहे हैं बच्चों का. तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, आपको आवाज क्लियर हो जाएगी मैम की.
Kamal ji, I would want 1 or 2 students from each school to tell me what is going on in their school. We don't want to burden the students. माइक बंद है आपका. अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो? Yes, ma'am. Ma'am, आ रही है. आ रही है? Yes. Good evening, ma'am. I am Ruhani from Fazilka. Ruhani, tell me what is going on in your school in English? Ma'am, today I get a from my phone from my teacher that there are classes for a test, and I today join it. Okay. मैम मुझे लगता है स्टार्ट कर देते हैं, है ना, धीरे धीरे. फिर ठीक है. नेक्स्ट टाइम से मुझे लगता है फिर आ जाएंगे सारे. आप स्टार्ट कर दें क्लास. ठीक है. मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ. प्रेजेंटेशन है इंग्लिश के बारे में. इंग्लिश क्या है, क्यों है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो प्रेजेंटेशन सब बच्चे? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. ठीक. हुसनप्रीत कौर, मुझे बताओ इंग्लिश क्या होती है आपके हिसाब से? Ma'am, English is a subject in which we study grammar and with the help of tenses we can speak the English. टीवी तो बंद है ना, तू टीवी बंद है नहीं चालू छे. सारे अपना माइक म्यूट कर लो. भाई ये रूम में करने है, मुझे रूम में करने. बेटा माइक सिर्फ जिनसे क्वेश्चन पूछे वही ऑन करें, बाकी मत ऑन करें. कमलदीप अपना माइक म्यूट करो. वेरी गुड हुसनप्रीत, आपने बिल्कुल सही कहा. इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश एक लैंग्वेज है. हमें लैंग्वेज की जरूरत क्यों होती है? Ma'am, to speak anything. Yes, to speak anything. communicate with other countries. Very good answer. To communicate, so that we can explain to other people what we want to say and we can understand what other people want to say. किसी का माइक डिस्टर्ब. अब सब अपने आप को म्यूट करो. मैं जिससे बोलूंगी सिर्फ वही अपना अनम्यूट करेंगे माइक. काजल म्यूट करो, नहीं तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा. मैं सबको म्यूट कर सकती हूँ, बट मुझे आपसे बात करनी है ताकि मुझे पता चले कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, इसलिए मैं म्यूट नहीं कर रही हूँ. ठीक है, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत डिसिप्लिन बच्चे हो, इसलिए सब अपने आप को म्यूट रखेंगे. हम बात करते हैं इंग्लिश की. इंग्लिश क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है. जो इंग्लैंड के लोग हैं उनको भी इंग्लिश कहा जाता है. ब्रिटिश कहते हैं या इंग्लिश कहते हैं. बट इंग्लिश एक्चुअल में क्या है? जो इंग्लिश की डेफिनेशन होती है वो इंग्लैंड की लैंग्वेज थी, लेकिन अब वो वर्ल्ड में बहुत जगहों पे बोली जाती है और वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड है. इसलिए अगर कल को हमें कम्युनिकेट करना है, किसी से बात करनी है, हम घूमने के लिए कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं भी जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स वहां पे रहते हैं, हम जाते हैं, तो हम उनको अपनी बात कैसे समझाएंगे? जरूरी नहीं है वहां पे हमें हिंदी बोलने वाले, पंजाबी में बोलने वाले लोग मिलें.
वहां पे लेकिन हमें इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश समझने वाले लोग जरूर मिलेंगे, इसलिए इंग्लिश जरूरी है। To help us communicate with others. अब इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक दूसरे से बात करना। कम्युनिकेशन कितने तरीके की होती है? कम्युनिकेशन 2 तरीके की होती है। कोई बताएगा कौन सी दो होते हैं? मैम रिटनिंग एंड स्पीकिंग। वेरी गुड। रिटनिंग बेटा वर्ड नहीं होता, रिटन। रिटनिंग कोई वर्ड नहीं होता, आप बोलोगे रिटन कम्युनिकेशन। मैम राइटिंग एंड टू स्पीक। हाँ, राइटिंग एंड टू स्पीक। राइटिंग एंड स्पीकिंग। बिल्कुल। तो जो हम लिख के कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? रिटन कम्युनिकेशन। और जो हम बोल के बात करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपनी बात किसी को कह के या किसी को लिख के समझाना उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। बात करके समझाएंगे तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, लिख के समझाएंगे तो रिटन कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता, किसी भी लैंग्वेज। इंग्लिश और जीके की मैम हर लैंग्वेज में होता है। हाँ ठीक है, आप म्यूट रखो अपने आप को। जो कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में होगा, आप हिंदी में भी जो बात करते हो, हिंदी में हम जो बातचीत करते हैं जिसको वार्तालाप बोलते हैं उसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में होती है। ठीक है? करनी तो है नहीं। इंग्लिश वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वन ऑफ द मोस्ट, फर्स्ट 3 में आती है, कभी फर्स्ट हो जाती है, कभी सेकंड हो जाती है, कभी थर्ड हो जाती है। दिशा एंड कृषा प्लीज अपना आप ये म्यूट कर लो, क्लास डिस्टर्ब हो रही है बच्चे आपकी वजह से। नाइमा, नमनजोत म्यूट करो, नाइमा म्यूट करो, नाइमा, नमनजोत, नाइमा एंड नमनजोत म्यूट योरसेल्फ। Okay. So English is one of the most spoken languages of the world. इसलिए इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है, इसलिए हम इंग्लिश को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसमें मास्टर करेंगे, एक्सेल करेंगे। ठीक है? इंग्लिश इंग्लैंड की लैंग्वेज तो है ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन इंग्लिश इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। ऑफिशियल क्या होता है? ऑफिशियल वर्ड का मतलब होता है ऑफिस में यूज की जाने वाली। तो अगर ऑफिशियली इंडिया को किसी से बात करनी है या किसी ऑफिस में, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, उनमें जो भी रिटन या वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। ठीक है? ओके ओके मैम। ओके मैम। अब हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की। आपके सब्जेक्ट में क्या क्या है? राइटिंग है, लिटरेचर है, ग्रामर है, पोएम्स हैं। ये सब आपके इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है जो आपको स्कूल में कराया जाएगा। स्कूल में कराने के साथ साथ हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, हम उसको एडवांस करेंगे और लर्न करेंगे ताकि हम उसमें एक्सेल कर पाए। जो आपका स्कूल में सिलेबस है वो तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हर चीज में परफेक्ट होना है। अब अगर हम बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर क्या होती है? कौन बताएगा? नाइमा आप अनम्यूट हो, आप ही बताओ मुझे कि ग्रामर क्या होती है।
rules and regulation of grammar. रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज, हिंदी ग्रामर भी तो होती है, पंजाबी व्याकरण भी तो होता है। मैम may I tell? हाँ प्लीज काव्या। Ma'am, Tell. it is a thing. It with the help of grammar we can speak any language. Correctly, we can speak any language correctly and properly. Very good Aryan, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो ग्रामर जो होती है वो चाहे आप 6th में पढ़ो, चाहे 7th में पढ़ो, चाहे 8th में पढ़ो, चाहे 9th में पढ़ो, चाहे आप कॉलेज जाके पढ़ना, ग्रामर कभी चेंज नहीं होती है। अगर आज आपको 2 रूल्स बताए जा रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में आपको 2 और रूल्स बताए जाएंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में आपको 2 और रूल्स बताए जाएंगे। लेकिन जो रूल आपने 6th में पढ़े थे नाउन्स के, या जो प्रोनाउन के या एडजेक्टिव के रूल्स आपने 6th में पढ़े थे, वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे। इसलिए हम बेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर हमारा बेस और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट और स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, इसलिए हमें किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, हमें सब कुछ समझना है। नहीं समझ आती तो आपने मेरे से पूछना है। ठीक है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। किसको नहीं आ रही आवाज? अभी आवाज आ रही है? मैम यस। ठीक है मैम यस। तो ग्रामर में क्या क्या है? टेंसेस है, वर्ब्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, पंक्चुएशंस हैं, प्रोनाउंस हैं, आर्टिकल्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, प्रेपोजिशन है, एक्टिव पैसिव है, मॉडल्स है, कंजंक्शन है, एडवर्ब्स है, एडिटिंग ओमिशन है। आपके सिलेबस में है ये सारा कुछ। स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम सब कुछ करेंगे। हम आपका लिटरेचर भी करेंगे, हम आपके पोएम्स भी करेंगे, हम आपका जो लेटर राइटिंग है वो सब कुछ करेंगे। ठीक है राहुल एंड राजेश, रूल्स सेम होते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है बच्चे, रूल्स सेम होते हैं। लेकिन जो रूल्स आपको 6th में बताए गए हैं तब आप थोड़े छोटे थे, अब आप 7th में हो तो आपको थोड़े ज्यादा रूल्स फॉलो करने हैं। 8th में आपको और एडवांस बताए जाएंगे। बेसिक रूल्स बिल्कुल सेम रहते हैं। पास्ट टेंस रहता है, प्रेजेंट टेंस रहता है, बट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, ये सारी चीजें ऐड होती जाती हैं। इसी तरह से जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाती हैं लेवल इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि नाउन क्या होता है? अभिनूर सिंह। Ma'am, noun is a word. Ma'am, name of anything, place, object, वेरी गुड, city, country, etc. वेरी गुड। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। जो चीज हम आंखों से देख सकते हैं या हम फील कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? नाउन। आप सबने 6th क्लास में, आई एम सो सॉरी, आप सब लोगों ने 6th क्लास में नाउन्स पढ़े हैं ना? यस मैम। तो सबको सिंगुलर प्लूरल नाउन्स पता है? यस मैम। यस मैम। जो एक्सेप्शंस होती हैं नाउन्स की वो भी सबको पता है? यस मैम। Yes, ma'am. चलो हम पूछते हैं, सब आंसर देंगे। ठीक है, सब एक साथ आंसर देंगे। ओके मैम। अगर सिंगुलर चाइल्ड है तो प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। वेरी गुड। यहाँ तो सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। टाइप्स ऑफ नाउन कौन बताएगा? शिप्रा। शिप्रा, ये किसने बताया? चैट में आंसर दिया है किसी ने? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने।
शीप का प्लूरल बताओ। sheep, Sheep. sheep, चाइनीज का प्लूरल। ma'am, Chinese, Chinese. डियर का प्लूरल। Deer. वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन? मैम इसमें सब चीजें कलेक्टिव होती है मैम, जैसे ma'am, group of nouns. स्टूडेंट, cities, countries. ठीक है, मुझे पता चल गया सबको आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। The group of objects. Yes, a group of objects. The word used to indicate class. Very good. Abstract noun क्या होता है? मैम happy, sad, feelings. I'm used for emotion. But feel. That you cannot see but feel. Very good. Which you cannot see but feel. Very good. Common noun क्या होता है? Ma'am, that is used for Boy, girl. Boy, girl, or anything that do not have any proper name. Boy, girl, village. The name of podcast. name of person, place or thing. Name of person, place or thing. Fruit. तो नाउन्स आप सबको आते हैं, आप सबने 6th में किए हुए हैं और सबने बहुत अच्छे से किए हुए हैं, राइट? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। Yes, ma'am. Yes. काफ का प्लूरल बताओ, सबके सब एक साथ बताओगे काफ का प्लूरल। Calves. Calves. शेल्फ का प्लूरल। Self. Calves. शेल्फ का प्लूरल बेटा, शेल्फ का। Self. वुल्फ का। वेरी गुड, वेरी गुड। सिटी का प्लूरल। Cities. पेनी का प्लूरल। पेनी बेटा, पेनी, पेन नहीं बोला मैंने, पेनी बोला है। Candies. The penny. लेडी का प्लूरल। कैंडी का प्लूरल। बस का प्लूरल। वैसे ले रही है लेकिन एक मिनट, कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं, मैं उनको एडमिट कर लूं। शायद वो पहले ऐड नहीं हो पाए। मैम एक ने हमारे प्रांत से भी ऐड होने की कोशिश कर रहे हैं, पीएस खेमटा जी। अगर अब दोबारा आया तो एक बार उनको करवा लें पाए, है ना? पीएस खेमटा जी। मैम हाँ जी, मैम आप पहले वाली स्क्रीनशॉट बता सकते हो, फिर से एक बार शो कर सकते हो? मैम मेरी मीटिंग लेफ्ट हो गई थी और बाद में ज्वाइन ही नहीं हो बेटा रही मैंने थी। स्क्रीनशॉट दिखाया नहीं उसके बाद जब आपकी मीटिंग लेफ्ट हुई। सर मैंने सबको ऐड कर दिया, अभी तो वेटिंग रूम में कोई नहीं है। ठीक है मैम, ठीक जस्ट है, इन थैंक केस यू। वो आते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा ऐड कर दूंगी।
मैं सोच भी रही थी कि Okay. होस्ट राइट्स अगर मैं आपको दे देती तो इसमें ये रहता, बच्चे ना शायद वेटिंग रूम में हाँ, रहेगा वो एक दो। कल से एक बार बात कर लेंगे। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ना कई बार बच्चे अप डाउन 5 मिनट, तो आप भी वो कंसंट्रेशन खराब हो जाएगी क्लास से आपकी भी, अगर बार बार। बिल्कुल। ठीक ठीक। नाउन्स आप सबने किए हुए हैं, ठीक है, तो नाउन्स तो मुझे पता लग गया है कि आप सबको आते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं। बुक का प्लूरल बताओ। मैम बुक्स बुक्स, keys, डॉग, Dog. dog, Ma'am, dog. Dog. बस, buses, Dog. पोटैटो, Buses. मैम क्या? पोटैटो, Potato. फुट, Potato. मैम feet, वेरी गुड, feet वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। सबको नाउन्स बहुत अच्छे से आते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स में टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। अभी हमने क्या किया, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। नमनजोत लिखना नहीं है। आप सबने मुझे बताया कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया। कंक्रीट नाउन कौन बताएगा क्या होता है? मैम कौन सा? कंक्रीट नाउन, कौन सा? कंक्रीट नाउन। Ma'am, it is used to indicate the things that we can touch, feel, and यस, वेरी वेरी गुड। जो चीजें हम फील कर सकते हैं अपनी 5 सेंसेस के साथ, उसको कंक्रीट नाउन बोलते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कोई भी चक लिया। सब माइक म्यूट रखेंगे अपना। Ma'am, can you please repeat concrete noun? Concrete noun is something that you can feel with your 5 senses. Like something that you can see or something that you can feel. Something that you can taste, something that you can see, something that you can eat, something that you can smell. एग्जाम्पल है, जैसे फ्लावर को आप स्मेल कर सकते हो, उससे फ्रेग्रेंस आती है, तो उसको हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन। जिस चीज की स्मेल आ रही है, हम कैसे फील कर पा रहे हैं उसको, हम अपनी नोज से स्मेल कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंक्रीट नाउन। अगर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, कोई भी चीज है जिसको हम देख पा रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं कंक्रीट नाउन। बच्चे, वो आपके नेट में प्रॉब्लम है, मेरी वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है। एग्जांपल क्या है? Please tell me example of this noun. The example is flower, because we can take the fragrance, we can smell a flower, we can take the fragrance of a flower. Ma'am, Yes, ma'am, can you mute all? yes, I can do that. I don't want to do that because I'm talking to you. Bluetooth mode. सब म्यूट हो गए अब, ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर दिया। मैम ओके। ये तो म्यूट किया था, तो आप कैसे बोल पा रहे हो? अब नहीं आप बोल पाओगे।
ठीक है, तो मैं ये भी कर सकती हूँ, आई कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग, बट आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज आई वांट टू टॉक एंड कम्युनिकेट सो दैट आई मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ओके मैम। Okay. ओके मैम। मैम पहले ओके। कंक्रीट नाउन सबको समझ आया? यस मैम। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रामर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ग्रामर में चीजें ऐड होती हैं, इसी तरह हमारे नाउन में क्या ऐड हुआ? कंक्रीट नाउन। हमने 6th में नहीं पढ़ा था कंक्रीट नाउन, राइट? अब हम पढ़ रहे हैं कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन होते हैं जो हम फील कर पाते हैं। डर, जैसे इसमें एग्जाम्पल में अगर एप्पल लिखा हुआ है तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि एप्पल को हम टेस्ट कर पाते हैं। लायन इसलिए लिखा है क्योंकि लायन से हम डर पाते हैं। आईज से हम देख पाते हैं। फ्लावर्स की हम स्मेल ले सकते हैं। तो जो चीज हम फील कर सकते हैं उसको कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। ठीक है, मैम ओके। वेरी गुड। ओके मैम। ओके मैम। अब हम बात करेंगे ग्रामर हमारे लिए और नाउन इतने इम्पोर्टेंट। हाँ जी, तो आप दोबारा ऐड हो जाओ, मैं आपको ऐड वो कर लेती हूँ। बेटा लाइंस मत लगाओ प्लीज आप प्रेजेंटेशन पे। ग्रामर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो किसी भी चीज का बेस बताती है और हमें प्रॉपरली यूज करने देती है। इसी तरह से नाउन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जितनी भी ग्रामर है उसका जो बेस है वो नाउन है। नाउन से प्रोनाउंस बनते हैं। आर्टिकल्स में नाउन्स प्रोनाउंस यूज होते हैं। टेंसेस में नाउन्स और प्रोनाउंस यूज होते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट में नाउन्स यूज होते हैं। तो नाउन्स बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं और ये हमारी बहुत हेल्प करेंगे आगे। इसलिए हमारा समझना बहुत जरूरी है बेसिक्स को। नाउन्स आपने कर लिए। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आपकी क्लास में 6th क्लास में टेंसेस कौन कौन से करवाए हुए हैं? ऑलमोस्ट सारे करवाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को सारे टेंसेस आते हैं, राइट? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब्जेक्ट प्रेडिकेट? यस मैम। यस। एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स? यस मैम। वर्ब्स? यस मैम। एडवर्ब्स? यस मैम। prepositions? यस मैम। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सब कुछ आता है। मेरा तो काम ही बहुत इजी कर दिया आप लोगों ने। और राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग? Yes, ma'am. यस मैम। नो मैम। अच्छा, ठीक है। तो एसे राइटिंग नहीं किया आपने, है ना? फिर हम वेडनेसडे से एसे राइटिंग स्टार्ट करेंगे। आप सबको टाइम टेबल मिल गया है? नो आप सबको मैम। टाइम टेबल मिला है? यस यस। ठीक है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आपकी 7:40 to 8:20 इंग्लिश की क्लास होगी। उसमें से एक दिन मैं आपको जीके और रीजनिंग करवाऊंगी। ठीक है, आज क्योंकि नया नया जूम था और ऐड होने में भी टाइम लग रहा था तो बहुत छोटा, इसलिए मैंने सिंपल नाउन ही रखा था बिकॉज मुझे सिर्फ ये देखना था कि क्या क्या आपके स्कूल्स में करवा रखा है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो इसलिए आप यहाँ पे हो। हम वेडनेसडे को एसे राइटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Ma'am, Ma'am, reasoning ओके मैम। ओके। हाँ जी, रीजनिंग की क्लास भी मैं ही लूंगी। वीक में से एक दिन मैं रीजनिंग और जीके लिया करूंगी या बीच बीच में ही मैं आपसे 5 मिनट्स 7 मिनट्स का सेशन
मॉक टेस्ट टाइप या क्विज रख के जीके और रीजनिंग करेंगे हम, ठीक है? ओके आप मैम। लोगों की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट है। ओके मैम। टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का ना 8:20 पे, तो बच्चे सभी उसमें जुड़ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू हाँ, मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. बाय मैम। ओके, बाय बाय। Thank you. Have a nice day. बेटा आप सभी अब नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर ले।